Dear JEE and NEET aspirants, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alan Akash, Bansal Classes and Career Point. Today is the JEE Main Tour Part 2B. We have already discussed in Part 2A the topic based on the acceleration due to gravity, the Kepler's law of planetary motion, and the Newton's law of gravitation of the chapter gravitation, and we have covered the previous year question of 2023. But in today's lecture, that is the part 2B, we are going to cover the JEE Main previous year questions of JEE Main 2023 of the topic based on motion of satellite, escape speed, and the orbital speed of the satellite, and gravitation potential and gravitation potential energy. So let's begin with the first question. The first question says that a body is released from a height equals to the radius r on the earth. The velocity of the body when it strikes the surface of earth, where g is the acceleration due to gravity. So this question, in this particular question, a body is released. So this question is based on gravitation potential energy. In this question we have to apply the conservation of energy. If you see by a diagram that if this is the our earth and its radius is given r, and a object is released, a body is released from a height equals to the radius. So let this height is equals to r, and the body is released. Since the body is released from a particular height, so its initial velocity will be equals to u is equals to 0, क्योंकि वो release किया जा रहा है. And finally it strikes on the earth surface. When it strikes the surface of earth, then what is the velocity of the body? Velocity body क्या है, ठीक है. तो जब ये यहाँ पे तो v क्या है, ठीक है. तो by conservation of energy, by conservation of energy, kinetic energy initial plus potential energy initial equals to kinetic energy final plus potential energy final. So since the initial velocity of this body is equals to 0, so this kinetic energy is equals to initial kinetic energy is 0, and potential energy, in the theory part we have discussed the gravitational potential energy between the two, between the particle and earth, that is when the body is at the surface of the earth, so its gravitational potential energy is minus g capital M small m upon r, that where the r is the radius of earth. जो capital M होता है यहाँ पे लिख भी देते हैं, that is capital M is the mass of the earth. ये अर्थ का मास होता है, और स्मॉल m जो होता है वो बॉडी का मास है. तो लिखिए अगर हम लोग यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी यहाँ पर है, तो बॉडी अर्थ का सेंटर से देखा जाए तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस आर. यहाँ ये आर है और ये भी आर है, तो आर प्लस आर दैट इज 2r इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. तो here the final kinetic energy is equals to half mv square, so it is equals to half mv square plus final potential energy is equals to minus g capital M small m upon, if the body strikes here, so the gravitational potential energy at the surface of earth is equals to minus g capital M small m upon r. So therefore I can write here half mv square is equals to g capital M small m upon, it will become 2r. So here if you see the small m and small m will be cancelled out, and 2 and 2 will be cancelled out. So we have to find the velocity of that body. So final velocity is equals to v square is equals to g m upon r. तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखें 2r, how it is 2r minus gm upon r को अगर एक साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा इस साइड में जाके. हाँ, तो अगर ये माइनस है, ये पूरा माइनस में टर्म है, जब ये यहाँ आएगा तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, तो माइनस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नीचे r बन जाएगा प्लस में. हाँ ठीक है, तो इससे भी आंसर वही होगा. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर. तो जी एम अपॉन यहाँ पे देख रहे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में, मतलब g के टर्म्स में दिया है, और g हम लोग जानते हैं क्या होता है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इसको जी एम अपॉन आर, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर नीचे एक r से मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर भी एक r से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर मतलब g मिल रहा है,
तो ये g इंटू आर वी स्क्वायर आ गया, देयर फोर द v इज इक्वल्स टू रूट अंडर जी आर। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। Now further the next question is based on escape speed. So this question says that a planet of mass 9 me and radius 4 re, where me and re is the mass and radius of earth respectively, has escape velocity in kilometer per second, और यहाँ पर escape velocity दिया हुआ है v is equals to 11.2 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन अगर देखा जाए इसका, हम लोग जानते हैं escape velocity क्या होता है, रूट अंडर जी एम अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई किसी प्लेनेट का कहा जा रहा है, सो प्लेनेट ऑफ मास 9 एम एंड 4 आर, यहाँ मास की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे 9 एम और रेडियस की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे 4 आर। तो फर्दर दूसरा एस्केप वेलोसिटी क्या आएगा हमारा, दैट इज रूट अंडर जी एम, मास क्या हो गया 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, दैट इज एन 9 me by 9 me बाय रेडियस में 4 टाइम्स है अर्थ का रेडियस है, तो 4 re, यहाँ पे एक रूट भी आता है आगे में, रूट 2 gm अपॉन आर होता है, रूट अंडर 2 gm अपॉन आर। सो अगर देखें तो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट बने, तो हम लोग उसको बाहर कर देते हैं, तो v इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रूट अंडर ये 3/2 रूट अंडर 2 gm अपॉन आर। हम लोग जानते हैं 2 gm अपॉन आर क्या होता है, दैट इज स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, तो 3/2 इंटू स्केप वेलोसिटी दिया है, उसको पुट करते हैं 3/2 इंटू 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमें मांग रहा है क्या, इन किलोमीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर सेकेंड तो यही हो गया 10 टू द पावर, तो इतना को हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये हो गया 33.6 अपॉन 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर फर्दर कैंसिल आउट करें तो ये होता है, डिवाइड करें तो ये आ गया 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Next question number 3 is based on gravitation potential. So this question says that if V is the gravitation potential due to sphere of uniform density on its surface, मतलब अर्थ का सरफेस पे अगर ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस में ये R है, ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग थ्योरी में कवर कर चुके हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये होता है दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू gm अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर जानना है, ये एक जनरल फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखे रहना है। तो यहाँ पर देखिए x जो है कि अर्थ का सेंटर से दूर ही होता है। मान लेते हैं अगर हम लोग को सेंटर अर्थ का सरफेस पे बोल रहा है, तो x की जगह अगर हम लोग r पुट करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मान लेते हैं हमें बोलता है कि बताइए कि अगर अर्थ के सेंटर से ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताइए r बाई जैसे 5r के दूरी पे बताइए, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट 5r पुट करेंगे और हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑफ अर्थ, तो सरफेस पे क्या होगा, सेंटर से हम लोग हमेशा लेते हैं, दैट इज सेंटर से अगर ले तो दैट इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ पे x की जगह सबसे पहले हम लोग r पुट करेंगे, देखते हैं r पुट करते तो क्या आता है, ठीक है। तो gm अपॉन 2r क्यूब, तो ये आता है gm अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस हम r ये रेडियस है, x के जगह r रखेंगे तो r का होल स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू gm अपॉन 2r क्यूब इंटू 2r स्क्वायर। ये बन जाएगा क्या, gm अपॉन यहाँ पे 2 कटा r स्क्वायर और यहाँ पे ये कट गया तो ये बचा gm अपॉन r, ठीक है। मतलब अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है, gm अपॉन r।
सो बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि देन इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ स्पेयर, तो कभी भी सेंटर पे बोल रहे हैं हम लोग, वहाँ पे रेडियस का जो वैल्यू होता है वो 0 रखते हैं। वहाँ पे रेडियस मतलब यहाँ x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो v डैश क्या आ जाएगा, हम लोग देख रहे हैं, देखिए ऑप्शन में देखिए कि v के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग v अगर निकाले, v डैश निकाले, तो ये क्या आता है, gm अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस x², मतलब वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 0, तो ये माइनस 0 कर देंगे, 0 का होल स्क्वायर 0 होता है। इसको फर्दर आगे लिखे तो gm अपॉन 2r³ इंटू 3r², तो यहाँ देखें तो r² और यहाँ पे कट गया तो ये बनेगा ये 3, ऊपर न्यूमरेटर में 3 gm अपॉन 2r। तो हम लोग अगर कंपेयर करें gm अपॉन r किसका वैल्यू आ रहा है, v का आ रहा है, तो gm अपॉन इसके जगह हम लोग v पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3/2v। तो हम लोग देखें हमारा जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर पे क्या वैल्यू आया, यहाँ देखिए दैट इज इक्वल टू 3/2v, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3/2v, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 4 is based on escape velocity. So this question says that the ratio of escape speed of a planet to the escape velocity of Earth will be, और गिवन है तो हम लोग को निकालना एक्चुअली क्या है, सॉल्यूशन में अगर लिखे तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है escape velocity of a planet का बाय escape velocity of अर्थ का, इसका हमें रेशियो पूछ रहा है क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ द प्लेनेट इज 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, अर्थ पे v इज इक्वल टू √2gm अपॉन r, ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। नाउ फर्दर ये क्या बोल रहा है, किसी प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कोई प्लेनेट पे √2g, मास क्या हो रहा है 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, तो हम क्या करते हैं me लिख लेते हैं, me और re मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बोल रहा है 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 16 me लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ बाय 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, बाय 4 re लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, Vp इज इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो ऊपर से 4 और नीचे से 2 बाहर आ रहा है, तो अब 4/2 √2gme अपॉन re, ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। तो उसके बाद Vp 4/2 क्या आ गया, 2, मतलब Vp क्या आ गया, और 2√2gme अपॉन r, ये दूसरा इक्वेशन आया। तो हमें रेशियो किसका पूछ रहा है, Vp अपॉन v, तो Vp अपॉन v क्या हो जाएगा, Vp अपॉन v इज इक्वल्स टू, Vp क्या आया, √2gme अपॉन re बाय, ये आ जाएगा v, पहला इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू √2gme अपॉन re। तो अगर इन दोनों को देखें, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2/1, दैट इज 2:1। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग को क्या करना था कि इसके हम लोग को रेशियो निकालना था प्लेनेट पे हमको कंडीशन दे दिया था, ये गिवन कंडीशन कि मास क्या हो रहा है प्लेनेट का, मास ऑफ द प्लेनेट इज 16 टाइम्स द रेडियस मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। सो दिस इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So now the next question number 5 is based on the orbital speed of the satellite. This question says that two satellites of masses m and 3m revolve around the earth in a circular orbit of radius r and 3r respectively. The ratio of orbital speed of satellite is, मतलब कि अगर हम लोग बनाएं this is the earth और ये जो सैटेलाइट है रेडियस r, मतलब ये रेडियस r है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो सैटेलाइट है अर्थ का सरफेस से बहुत थोड़ा सा ही दूरी पर रिवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग अप्रोक्स मान लेते हैं कि वो r के बराबर है। तो एक ऑर्बिट हो गया, ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये रहा एक सैटेलाइट, और एक जो सैटेलाइट है वो 3r का डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ये हो गया ऑर्बिट दूसरा सैटेलाइट का।
तो ये हम लोग मान लेते हैं दिस इज S1 सैटेलाइट और ये दूसरा सैटेलाइट है, ये हो गया दूसरा सैटेलाइट, ये हो गया S2 सैटेलाइट। दोनों सैटेलाइट है और एक है 3R और एक का मास यहाँ पर दिया हुआ m है, एक का मास क्या है m है, दूसरा का मास क्या है 3m है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो सबसे पहले हमें ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है सैटेलाइट का वो पता रहना चाहिए। सो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, तो इसका जो ऑर्बिटल स्पीड होता है ये होता है रूट अंडर, हम लोग लिखे v इज इक्वल्स टू रूट अंडर gm अपॉन r, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, मतलब v1 अपॉन v2, तो यहाँ देखिए g और m तो कांस्टेंट है, तो फर्दर खाली यहाँ पे देख रहे हैं कि r रेडियस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर r, सो आई कैन राइट दैट v1 अपॉन v2, क्योंकि हम लोग और रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड पूछ रहा है, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये पूरा होल रूट अंडर R2 बाई R1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो R2 क्या है यहाँ पर, R2 देखा जाए तो रेडियस 2 क्या है 3R है, तो यहाँ पर 3R रखेंगे अपॉन R1 क्या है यहाँ पे R है, तो R रखेंगे रूट अंडर 2, पूरा में रूट आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि R और R कैंसिल आउट हो रहा है, रूट अंडर 3 अपॉन 1 आ रहा है, रूट अंडर 3 अपॉन 1, तो फर्दर आई कैन राइट रूट 3:1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये है रूट सी ऑप्शन, दैट इज रूट 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेज दैट, ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 अप्रैल 2023, ठीक है। तो द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबव अर्थ सरफेस एट ए हाइट इक्वल्स टू r विल बी। टाइम पीरियड, तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं, सिंपल फॉर्मूला थ्योरी में हम लोग को पढ़ाया, थ्योरी में मैंने कवर भी किया है और पढ़ाया भी जाता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू, तो मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ये होता है इज इक्वल्स टू 2 पाई r का पावर 3/2 बाई gm का पावर 1/2। ये सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो r है हमको जहाँ पर बोल रहा है मतलब 2r पे बोल रहा है वहाँ पर टाइम पीरियड निकलेगा। हमको क्वेश्चन में r बोल रहा है तो यहाँ पे r स्मॉल r की जगह हम लोग r पुट करेंगे कैपिटल R, तो हमारा वहाँ पे आएगा टाइम पीरियड। तो देखते हैं कितना आता है। तो 2 पाई, इसको हम आगे लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई रूट अंडर में लिख सकते हैं r का पावर, ये याद रखना है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये आप लोगों को याद रखना है, ये याद है तो क्वेश्चन बन सकता है इजिली। तो 2 पाई रूट अंडर r का पावर 3 रख सकते हैं बाई gm, ठीक है। तो r क्या बोल रहा है यहाँ पर, r बोल रहा है यहाँ पे r कैपिटल R, लेकिन यहीं पर गलती होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं r डायरेक्ट r कैपिटल R रखते हैं, ये गलत है। यहाँ पर क्या रखा जाता है, अर्थ का सेंटर से ना देखा जाएगा, तो अर्थ का सेंटर से ये कैपिटल R और r ये जो r इज इक्वल्स टू h, तो यहाँ पर ना टाइम पीरियड हमको बताना है, दैट इज हम लोग को सेंटर से अगर लेके चले तो ये हमारा 2r हो जाता है। तो सेंटर से अगर देखे तो ये हमारा क्या हो जाता है 2r हो जाता है। तो ये क्या r स्मॉल r की जगह हम लोग 2r पुट करेंगे, तो 2 पाई रूट अंडर r की जगह 2r रखेंगे, तो 2r का होल क्यूब क्या हो जाएगा 8r क्यूब, तो 8r क्यूब बाई gm, ठीक है, ये लिखे। उसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पर देखे कि g इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, तो हमें कुछ लग रहा है कि नीचे अगर g आ जाएगा g, तो वहाँ पे पाई स्क्वायर बाहर आके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए तो हमें पता है यहाँ पर g इज इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे gm अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8r अपॉन g हो जाएगा, ठीक है। अब g का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पाई, क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्वेश्चन इजिली बन जाए। देखिए साइड में दिया g इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग इसको अगर रखें तो 2 पाई रूट अंडर 8r अपॉन g का वैल्यू रख देंगे पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाहर आएगा तो पाई स्क्वायर बाहर आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई
रूट अंडर 8r अपॉन ये पाई हो जाएगा, तो पाई पाई विल बी कैंसिल आउट। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में, तो जब 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो इसको यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 को जब अंदर लेके जाएंगे तो 8 इंटू 2 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू बाहर में आर है, तो हम देयरफॉर आवर टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट एट द डिस्टेंस एट द हाइट h इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू रूट अंडर 32r। तो ये हमारा टाइम पीरियड, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है तो सिंपली आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन द एस्केप वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ अर्थ हैज ए मास 9 टाइम्स एंड रेडियस ट्वाइस टू दैट ऑफ प्लेनेट पी। तो मतलब अगर इसका हम सॉल्यूशन में देखें तो गिवन पोर्शन अगर लिखे तो गिवन क्या है कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स मास ऑफ प्लेनेट एंड मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का जो रेडियस है वो ट्वाइस दैट ऑफ प्लेनेट पी। तो अर्थ का जो रेडियस है इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ प्लेनेट पी। सो इट सेज दैट द ये जो चीज है वेलोसिटी, द इतना वेलोसिटी जो मीटर पर सेकेंड विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय ए रॉकेट टू पुल आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ पी। मतलब पी मतलब बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ही कर देना है। अगर ये अर्थ है, अर्थ का बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो वहां पे फोर्स लगाएगा, तो वहां से बाहर करना है, मतलब हम उसको एस्केप स्पीड देंगे, एस्केप वेलोसिटी देंगे। जस्ट हमको सिंपल है कि यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी बोल रहा है प्लेनेट पी का, तो हम अगर लिखे अर्थ वी क्या होता है रूट अंडर 2 GM अपॉन आर होता है। ये अर्थ पे ये अर्थ का एस्केप स्पीड होता है, तो अर्थ एस्केप स्पीड ऑफ प्लेनेट क्या होगा रूट अंडर 2 जी ये एम ई लिख देंगे एम मास ऑफ प्लेनेट। तो प्लेनेट का मास देखिए, तो यहाँ देखिए प्लेनेट का जो मास है एम ई अपॉन 3 9 हो जाएगा, 9 नीचे आएगा, तो मास ऑफ प्लेनेट इज इक्वल्स टू एम ई अपॉन 9। तो यहाँ लिखेंगे एम ई अपॉन 9 अब डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ठीक है। नीचे क्या आएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट का रेडियस क्या है आर पी इज इक्वल्स टू आर ई अपॉन 2। यहाँ पर आर ई अपॉन 2 पुट करेंगे तो हमें देख रहे वी, ये हमारा वेलोसिटी आएगा। देखिए अगर कंपेयर थोड़ा सा करें कि वी हमको लाना है रूट अंडर, तो यहाँ देखिए वी रूट अंडर जी एम ई बाई आर ई, इसको खोजना पड़ेगा, ठीक है। ताकि अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ऊपर क्या आ जाएगा, ये जो 2 है वो ऊपर चले जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 जी एम ई अपॉन आर, ये जो नीचे ये 9 नीचे चला जाएगा। तो देखिए जी एम ई अपॉन आर ई ये सब ये क्या बन रहा है, देखिए अगर इसको इससे कंपेयर करें तो ये हमारा, अगर 4 को हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये जो चीज़ है रूट में जो ये चीज़ है ये हमारा एस्केप वेलोसिटी बन रहा है। वी हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे, देखिए अगर हम लोग उसको वहाँ पुट करते हैं तो क्या आता है रूट अंडर 2/9, ये वी आ गया। अब अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो देखिए इससे अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अगर इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ये लिखते हैं हम लोग यहाँ पर v अपॉन 3 रूट एक्स बराबर, इसको यहाँ लिखते हैं रूट अंडर 2 अपॉन 9 v। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर v आ रहा है, ठीक है, तो 3 नीचे आ जाएगा, हाँ 3 रूट अंडर 9 है वो 3 आ जाएगा। तो देखिए रूट अंडर x, तो देखिए ऊपर में, तो इसको अगर हम फर्दर लिखे तो ये रूट अंडर 2 वी अपॉन 3, देयरफॉर अगर कंपेयर किया जाए तो रूट अंडर x इक्वल्स टू रूट अंडर 2, तो रूट अंडर x क्या आ रहा है रूट अंडर x इक्वल्स टू रूट अंडर 2, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आया 2। तो हमारा x का जो वैल्यू है कंपेयर करने के बाद जो x का वैल्यू 2 आया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, question number 8. It is also based on escape velocity. So this question says that the escape velocity of two planets A and B are in the ratio. मतलब VE, यहाँ पर सॉल्यूशन अगर देखें इसका, तो escape velocity of two planet A and B are in the, मतलब VE by VB, VA by VB क्या दिया, VA अपॉन VB ये दिया 1/2 दिया है, एंड इफ द रेशियो ऑफ देयर रेडियस मतलब R1 RA अपॉन RB गिवन है, RA अपॉन RB इज इक्वल्स टू 1/3,
So it says that if the ratio of their radius is 1:3, then the ratio of g, that is acceleration due to gravity of planet A to planet B will be. तो यहाँ देखिए escape speed, हम लोग क्या, escape speed का फॉर्मूला क्या होता था? escape speed का हम लोग का फॉर्मूला देखिए, तो इट्स फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन 2gm/r, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर नीचे रेडियस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता है कि g जो होता है, g इज इक्वल टू gm/r² होता है, जानते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू √2gr, ठीक है। तो हमारा v, हम इसको इसके टर्म में लिखे तो ये आ गया, ठीक है। तब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर ये हमें पता है ये एक्सप्रेशन, तो हम लोग सॉल्व आराम से कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो हमको G1:G2 मतलब G::G पूछ रहा है, तो VA/VB, एक बार हम फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं। VE इज इक्वल टू √2gr होता है। अब दोनों साइड जब स्क्वायर करें तो VE² इज इक्वल टू, क्योंकि हमें रेशियो पूछ रहा है, हम थोड़ा ये दोनों साइड स्क्वायर करके ये 2gr आ गया। अब देखिए VA/VB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट है, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड है √g और r का, ठीक है। तो इज इक्वल टू G1 GA/GB इंटू RA/RB। वैसे भी अगर हम लोग 2 लिखते थे, 2 तो कैंसिल आउट ही हो जाता, कांस्टेंट टर्म है, रेशियो ले रहे तो वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वेरिएबल है उसको लिखते हैं। VA/VB का रेशियो क्या दिया हुआ है, देखिए VA/VB का रेशियो 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू GA/GB, जो हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो GA/GB विल इनटू आर, रेडियस क्या दिया है 1/3, देयरफॉर हमारा आंसर जो आ जाएगा GA/GB क्या आ जाएगा 3, ऊपर भेजेंगे 3 इज इक्वल टू 3/4। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमें बस एक्सप्रेशन पता है। सिंपल जेई मेन में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है ग्रेविटेशन का। तो हमारा आंसर 3:4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द बेस्ड ऑन स्टेटमेंट क्वेश्चन। सो आप लोग वहां देखिए क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 सेज दैट फॉर अ प्लैनेट इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट टू इट्स रेडियस इंक्रीजेस द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट आल्सो इंक्रीजेस। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है, यहाँ अगर देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशियो ऑफ मास एंड ऑफ द प्लैनेट, मतलब एम, स्टेटमेंट 1 अभी हम लोग देख रहे हैं। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ मास अपॉन रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर देन द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट आल्सो इंक्रीजेस। देखते हैं v क्या होता है, √(gm/r), तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √m/r। तो यहाँ पर अगर √m और r का अगर रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग देख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। देयरफॉर आई कैन से दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि m और r का रेशियो, अगर m/r का रेशियो इंक्रीज कर रहा है मतलब हमारा एस्केप वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है। नाउ स्टेटमेंट अब 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 सेज दैट एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट। देखिए तो एक बार एस्केप वेलोसिटी ये होता है, या तो एक और फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू √2gr। तो क्या ये एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है रेडियस का? नहीं। देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या है, देखिए डिपेंडेंट है रेडियस का, तो स्टेटमेंट 2 इज, तो यहाँ स्टेटमेंट 2 इज क्या है, फॉल्स है या इनकरेक्ट है। तो हम लोग इस यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हाइल द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग वहाँ देखिए स्टेटमेंट 1 सेज दैट, यहाँ स्टेटमेंट 1 बोल रहा है if E is the total energy of a satellite moving around the earth then its potential energy will be E/2। तो सबसे पहले यहाँ पे जानकारी रखना था एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट क्या होता है। तो यहाँ पर देखें तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट ये क्या होता है, सब ये याद रखने का चीज है। E इज इक्वल्स टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r।
और वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट क्या होता है, सैटेलाइट इन ए ऑर्बिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस, ये पॉजिटिव हो जाता है जी एम बाई 2r, और हम वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी होता है पी ई इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब देखिए, अब इतना जानकारी अगर पता है तो क्वेश्चन सिंपली बन जाएगा। देखिए थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आता है जेई मेन में, जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, इफ ई बी द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ई अगर टोटल एनर्जी है, देखिए ये ई दे दिया है, सो देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी ई बाई 2, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ई बाई 2। क्या ये सही है? ई और पीई का रिलेशन देखा जाए तो ई और पीई का जब रिलेशन देखा जाए, पीई का रिलेशन देखें तो ई और पी का रिलेशन देखा जाए तो जो पीई है वो क्या है, जो पीई है वो 2 टाइम्स ये है, देखिए माइनस जी कैपिटल एम, तो यहाँ हाफ है और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो अगर देखिए सिंपल, अगर हम लोग क्या करें कि ई अपॉन पी करते हैं तो एनर्जी क्या ये है, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r डिवाइडेड बाई माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, तो ये पूरा ऊपर कट गया, आर आर कट गया, यहाँ देखिए माइनस माइनस भी कट गया, तो क्या आ गया, नीचे में 2 आ गया और ऊपर में 1 आ गया, तो ये बन गया 1/2 बन गया। तो अगर देखा जाए तो E इज इक्वल्स टू जो पी ई है, पी इज इक्वल्स टू 2E आ गया। देखिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स एनर्जी है, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी विल बी E बाई 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू E बाई 2। क्या ये गलत सही है? नहीं, गलत है। ये क्या हो रहा है, हमारा ट्वाइस हो रहा है। यहाँ देखिए ये सही है, ये गलत हो गया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 का बात करते हैं, आप लोग वहाँ देख ही रहे होंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट इज इक्वल्स टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का जब रेशियो निकाला जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r बाई टोटल एनर्जी हमारा क्या है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में, टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r है, तो ये क्या है 1:1, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज कहे तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट इज इक्वल्स टू हाफ द मैग्नीट्यूड, हाफ थोड़ी ना होगा, ये तो इक्वल होगा। सिंपल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट। देखिए आप लोग वहां पे जो तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो इनकरेक्ट। Next question, question number 11. This question is based on the energies, various forms of energy. देखिए, two satellite A and B move round the earth, मतलब दो सैटेलाइट है, ये अर्थ है और दो सैटेलाइट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, और ये एक दूसरा सैटेलाइट है। यहाँ देखिए मास का वेरी हो रहा है। In the two satellite A and B move around the Earth in the same orbit. देखिए एक ही ऑर्बिट है, ये हमारा क्या है, ये अर्थ है हमारा, और एक ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है दोनों सैटेलाइट। सो द मास ऑफ A इज ट्वाइस ऑफ B, मतलब ये अगर मान लेते अगर ये A है, सॉरी अगर ये A है, द मास ऑफ A इज ट्वाइस द मास ऑफ B। A क्या है 2B है और ये B है, ठीक है, B सैटेलाइट है। तो पूछ रहा है द क्वांटिटी विच इज सेम फॉर टू सैटेलाइट, कौन सा क्वांटिटी दोनों सैटेलाइट के लिए सेम होगा। देखिए दोनों सैटेलाइट का रेडियस सेम है, ये दोनों एक ही ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है, ओनली मास का डिफरेंस है। तो देखिए कि कौन सा चीज चारों ऑप्शन में से मास का इंडिपेंडेंट है। तो क्या पहले सबसे पहले अगर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के ऑर्बिट पे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। जहाँ पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एम हमें
हम लेके चलते कैपिटल एम क्या है, मास, ये अर्थ का मास है, और जो स्मॉल एम है वो किसका मास है, किसका मास है, जो सैटेलाइट है उसका मास है। देखिए जी कैपिटल एम स्मॉल, ये अर्थ का, यहाँ पे सैटेलाइट का मास आ रहा है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, ये सेम नहीं होगा कि अलग होगा, दो, इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग, इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा। अब आते ये टोटल एनर्जी, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, टोटल एनर्जी पे आते हैं। क्यों, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। देखिए फिर से इसमें m का टर्म आया, मतलब मास, अगर मास अलग अलग है तो टोटल एनर्जी भी अलग अलग होगा। फिर ये क्या करा, ये सेम नहीं हुआ। फिर काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, अभी इससे पहले ही इक्वेशन और था, इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। देखिए इसमें भी m है, लेकिन जो ऑर्बिटल स्पीड होता है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड होता है जो सैटेलाइट का रूट अंडर gm अपॉन r होता है। यहाँ देखिए कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड होता है सैटेलाइट का, वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, इट डजंट डिपेंड ऑन अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट, देयरफॉर वी कैन से द स्पीड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्पीड वेरी नहीं कर रहा है, और बी और सी दोनों गलत ऑप्शन हो गए। So this is all about today. So if you have not subscribed or like my channel, so subscribe and click on the bell icon for the further latest update of my videos. So thank you.